Question number 12, page 6.20. Question 12. Please read the question. Question 12, page 6.20. Read it, everyone. A Limited holds 80% of equity share capital and voting power in B Limited. A Limited sells inventories costing rupees 180 lakhs to B Limited at a price of rupees 200 lakhs. The entire inventories remain unsold with B Limited at the financial year end 31st March 2021. B. A Limited holds 75% of equity share capital and voting power of B Limited. A Limited purchases inventory costing rupees 150 lakhs from B Limited at a price of rupees 200 lakhs. Entire inventories remain unsold with A Limited at the financial year end 31st March 21. Suggest the accounting treatment for above mentioned transactions in the financial statements of A Limited, giving reference to relevant accounting standard. एक सेकंड, ये पूरा क्वेश्चन किसके बारे में? इंट्रा ग्रुप स्टॉक के बारे में. एम आई करेक्ट? अच्छा, इंट्रा ग्रुप स्टॉक में ट्रीटमेंट क्या करना है आपको कि जो भी प्रॉफिट कंपोनेंट है, दैट प्रॉफिट कंपोनेंट वी आर सपोज टू रिमूव इट फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक. और उसका सेकेंड इफेक्ट, वी हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सेलर कंपनी, द कंपनी विच इज सेलिंग द गुड्स. चलो, राइट डाउन द फर्स्ट पैरा. As per AS 21, as per AS 21, as per AS 21 into inverted commas, consolidated financial statements, comma, the profit component in intra-group stock, the profit component in intra-group stock is required to be reduced from total stock in consolidated balance sheet and from profit and loss account of the seller company. Profit and loss account of seller company. चलो, next line. In this question or next line A. चलो, everybody read situation A. मुझे बताओ कौन सी कंपनी को माल बेचा है और प्रॉफिट कंपोनेंट कितना है. बोलो, who has sold goods to whom?
A Limited is a seller company. अरे yes or no? तो A Limited has sold the goods to B Limited. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टोटल स्टॉक रिड्यूस करोगे बाय 20 lakhs. 20 lakhs कैसे आया? डिफरेंस बिटवीन 200 एंड 180. और दूसरा इफेक्ट, यू विल रिड्यूस टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विच कंपनी? A Limited. Write down. Since A Limited has sold the goods to B Limited, since A Limited has sold the goods to B Limited, comma, the profit component rupees 20 lakh into bracket 200 lakh minus 180 lakhs. Bracket close, will be reduced from profit and loss account of A Limited, will be reduced from profit and loss account of A Limited, and also from total stock of B Limited. Sorry, total stock in consolidated balance sheet. Total stock in consolidated balance sheet. Acha, I am not sorry to say B part I am not dictating. Finish it off. Was this question a gross insult to your caliber? अरे मेरे को एक नोटबुक देना भाई सपोर्ट के लिए, एक नोटबुक. थैंक यू. Was this the last question? अरे yes ना? चलो हेडिंग दो. अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स इन consolidated financial statements AS 23. Accounting for investment in associates in consolidated financial statements in consolidated financial statements. Chalo, have you given the heading? Are yes?
चलो अब जरा यहाँ जाए दो सब. Everyone, please pay attention here. Are you guys listening? Yeah. सुनो. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स. आप लोगों ने AS18 किया, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर. कितने लोग अर्ली बर्ड वाले? बराबर हाथ ऊपर करो ना. उसमें क्राइम थोड़ी किया है तुमने. यानी बाकी सब एंग्री बर्ड, आई मीन रेगुलर बैच. हाँ ओके. तो रेगुलर बैच वाले ज्यादा है इसमें, राइट? हाँ. तो सुनो, हाँ अर्ली बर्ड वाले, पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज एसोसिएट? अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड. तुम लोग ने AS18 किया है. व्हाट इज एसोसिएट? यस मैम. गोगी, एसोसिएट percentage more than 20%, right? Listen, if you are having investment in a company more than 20% but less than 50%, क्योंकि 50% हो गया more than, तो वो आपका सब्सिडरी हो गया. एसोसिएट कब रहेगा? जब आपका होल्डिंग more than 20% हो. That means that company is your associate. I repeat that, your associate. अच्छा, अब जरा याद है, listen. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स कैसे दिखाने का, मगर खास इंपॉर्टेंट ये है इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि AS23 सिर्फ वही कंपनी को अप्लाई होगा जिसको AS21 ऑलरेडी अप्लाई हो रहा हो. नहीं समझा? लिसन टू मी केयरफुली. मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं. सुनो, समझो मैं हूं A लिमिटेड. ओके, मेरा 24% स्टेक है इन बी लिमिटेड. इसका मतलब आई एम इन्वेस्टिंग कंपनी. बी लिमिटेड इज व्हाट? एसोसिएट. मगर यहां AS23 नहीं लगेगा. मगर समझो मेरा 24% स्टेक इन बी लिमिटेड है, साथ साथ समझो मेरा 60% स्टेक इन एक्स लिमिटेड भी है. इसका मतलब मैं मेरा और एक्स लिमिटेड का दोनों का मिलाकर एनीवे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही रहा हूं. तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड कैसे दिखाई देगा? दिस इज ऑल अबाउट AS23. इसका मतलब सिर्फ वही कंपनी को AS23 अप्लाई होगा जिसको AS21 ऑलरेडी अप्लाई होता हो. क्योंकि अगर किसी को AS21 अप्लाई हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही नहीं रहा है. और अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना ही नहीं रहा है तो AS21 का नहीं समझिए. एकदम क्लियर? सो AS23 सिर्फ वही कंपनी को लगेगा जिसको, राइट? एक काम करो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिख के रखो. AS23 is applicable only to those companies to whom
21 is applicable. Because this AS talks about presentation in into inverted commas consolidated financial statements, in consolidated financial statements. Arey yes, everybody clear up to here? Yes sir. चलो अब जरा यहाँ ध्यान दो, listen everybody. Now how exactly we are supposed to go about this standard? Listen to me carefully. Now, how the investments are to be presented? तो सुनो, normally investments are there in the balance sheet at cost, that is the money what we pay. मगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 क्या बोलता है कि जो भी कॉस्ट आपने पे किया है वो कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करो. वो दो पार्ट में डिवाइड करो. एक, शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट, एंड बैलेंसिंग फिगर either goodwill or capital reserve. एक सेकेंड. अब AS 21 कैलकुलेट और सीखने के बाद ये पॉइंट तो हमारे लिए एकदम पोपट हो गया. समझो एक कंपनी है एसोसिएट ए लिमिटेड, उसका इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, उसके सारे रिजर्व्स का टोटल है 5 लाख. ओके, हम है बी लिमिटेड इन्वेस्टिंग कंपनी, हमने उनका 30% स्टेक खरीदा है. कितना? 30% स्टेक बाय पेइंग ₹5 लाख. बराबर. तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप ही मुझे बता सकते हो कि इसमें 5 लाख का ब्रेकअप क्या होगा. तो सिंपल है, उनका शेयर होल्डर्स फंड्स का वैल्यू कितना है? 15 लाख. अच्छा, 15 लाख में से हमारा स्टेक कितना परसेंट है? 30%. यानी हमारे स्टेक का बुक वैल्यू कितना हुआ? 4.5 लाख. अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब बाकी का 5 लाख, बाकी का 50,000 रुपया हमने गुडविल करके दिया होगा. अरे यस, अगर आपको याद हो तो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऐसा सीखा था कि डेबिट में कॉस्ट लिखने का, क्रेडिट में इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रोपोर्शन 3 लाख, रिजर्व्स का प्रोपोर्शन 5 लाख का 30% 150. ये हम क्लोज करें, डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है 5 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर 50,000 इज कॉल्ड एज गुडविल. एक मिनट, आर यू क्लियर एवरीवन? यस. तो आपको क्या करना है? कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है. ओके, सो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. ओके, फिर उन लोग बोलते हैं कि इसमें ऐड करने का शेयर इन
पोस्ट पीरियड प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। अब समझो, मैं कंपनी हूं, इन्वेस्टिंग कंपनी, अपना नितिन लिमिटेड इज माय एसोसिएट। अब नितिन लिमिटेड ने समझो 2 लाख रुपया प्रॉफिट किया, तो मैं क्या बोलेगा कि नितिन लिमिटेड का टोटल प्रॉफिट है 2 लाख, मगर 2 लाख में से 30% 60,000 मेरा है। 30% 60,000 मेरा है। तो इसका मतलब ये मेरे लिए इनकम हो गया, भले आया नहीं है, इनकम एक्रू तो हो गया। अच्छा, सिंस आया नहीं है मगर इनकम एक्रू हो गया है, इसका मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू उतना बढ़ गया, राइट। मैंने 5 लाख का खर्चा किया था इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए, उसमें 60,000 और ऐड हो जाएगा, बिकॉज दिस मच प्रॉफिट इज बिलोंगिंग टू मी। और इसमें से माइनस करना है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट्स। अगर मुझे एसोसिएट से कोई डिविडेंड मिला है, नॉर्मल कोर्स में हम डिविडेंड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं, मगर यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन लोग कहते क्या है कि आपने तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही आपने इनकम करके ऑलरेडी लिख लिया है, आपने पूरा का पूरा शेयरिंग प्रॉफिट ही आपने इनकम करके लिख लिया है। तो अगर आपको एसोसिएट ने कोई डिविडेंड दिया है, तो दैट डिविडेंड विल बी पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच यू ऑलरेडी बुक्ड। सो एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट will be straight away deducted, and this is called investment at carrying amount। मगर मैं ठोक बजा के वापस याद करा रहा हूं, क्या हम कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कर रहे हैं या खाली कागज के टुकड़े पे? Because we are talking about consolidated financial statement, that means books of accounts में we are not doing anything, यानी इसको accounting principles के साथ relate नको करो, accounting principles के साथ इसको relate मत करना। So this is the way in which the investment is presented in consolidated financial statement. Everybody speak out with me। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करने का। What are the 2 parts? Share in net assets, और दूसरा बैलेंसिंग फिगर विल बी आइदर गुडविल और, यानी हमने लिखा तो बेसिकली कॉस्ट ही है, मगर कॉस्ट को टुकड़ा करके लिख दिया। फिर उसमें क्या ऐड करने का? शेयर इन पोस्ट पीरियड प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, और उसमें से माइनस क्या करेंगे? डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट। दिस इज प्रेजेंटेड इन presentation in consolidated बैलेंस शीट। एक्चुअली ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ये पूरा फिगर्स के साथ समझाने के लिए मैंने टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल खुद फ्रेम करके डाला हुआ है, यानी खुद बना के सम रखा है कि जिससे मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। मगर एक मिनट, उसके पहले मैं आपको नोट्स में दूसरा चीज भी दे दूं, एंड दैट इज प्रेजेंटेशन इन consolidated profit and loss statement। अच्छा, now in consolidated
profit and loss statement, how the presentation will come. So listen, presentation will come in consolidated balance sheet, profit and loss statement as, तो आपने ये जो शेयर इन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में ऐड किया ना, तो जाहिर है उसका दूसरा इफेक्ट आएगा, एंड दैट दूसरा इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इनकम. आई रिपीट, इट विल कम एज व्हाट? इनकम. और इनकम में आएगा कौन से हेडिंग में? अदर इनकम्स में, और वो आएगा शेयर इन पोस्ट पीरियड प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट. बस प्रॉफिट एंड लॉस में खाली एक ही आइटम आएगा, और वो भी वो कि ऊपर आपने जो शेयर लिखा वो उसका सेकेंड इफेक्ट. चलो एवरीबडी कॉपी दिस एंड नाउ वी स्टार्ट विद द सम्स. एकदम छोटा सा क्यूट सा स्टैंडर्ड है. मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में 1.5-2 घंटे में ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, फिर हम केस वाले को गुड बाय बोल देंगे, फिर हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? क्या हुआ? जूम आउट करो अब. ठीक है? सी शेयरिंग प्रॉफिट. तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर तूने इनकम करके बुक किया तो उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में इंटरेस्ट रिसीवेबल करके आएगा. तो इंटरेस्ट रिसीवेबल को सेपरेट दिखाने की जगह पे उन लोग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं. हमें समझो. हाँ, मैंने अगेन क्या बोला कि दिस इज ऑन पीस ऑफ पेपर. तेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भूल जा. मैं तेरे को पहले ही बोला भाई. ऑलराइट, चलो अब सुनो. आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने पहला जो क्वेश्चन है वो खुद बना के रखा है फ्रेम करके, और उसमें मैंने पर्पसली ऐसा लिखा है कि S23 हो तो क्या और ना हो तो क्या. तो आपको दोनों के बीच का फर्क समझ में आएगा. ओके, I purposely done question in that way. चलो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर मला नहीं माहित. क्वेश्चन 1 पेज नंबर 6.29. छोटा सा स्टैंडर्ड है, एकदम फटाफट हो जाएगा. चलो रीड इट. X Limited acquires 25% stake in Y Limited on 1/4/2023 for rupees 5 lakh, on which date balance sheet of Y Limited showed rupees 10 lakh as equity share capital and rupees 3 lakh as reserves. During 23-24, Y Limited earned profit rupees 60,000 and on year end declared and paid dividend rupees 40,000 therefrom. Show investment in associate in A stand alone financial statement and B consolidated financial statement. यानी आपको दोनों के बीच का फर्क समझ में आएगा. स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स नो AS23 और consolidated financial statement means as per AS23. Are you getting it? Fine. Chalo, let's start. What's the question number?
1. Write down. Presentation in stand alone financial statements. Presentation in stand alone financial statements. ब्रैकेट में लिखना है तो लिख के रखो नो AS23. नो AS23. चलो उसमें फर्स्ट बैलेंस शीट. तो यहां आएगा इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड इनटू ब्रैकेट कॉस्ट. कितना है कॉस्ट? 5 लाख. बस हो गया. जय श्री कृष्ण. और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. अच्छा, अगर हम कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से हमें जो डिविडेंड मिलेगा, खाली वो डिविडेंड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉर्मली रिकॉर्ड होता है. चेक इट इन द क्वेश्चन. हाउ मच इज डिविडेंड रिसीव्ड? डिविडेंड received from Y Limited 40,000 multiplied by what is our stake? 25%. Is it 10,000? हाँ भाई, मुंबई इंडियंस, ये है तेरा नॉर्मल प्रेजेंटेशन. यहाँ पे AS20 यानी नॉर्मल अकाउंटिंग में ऐसा होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में यही होगा, क्योंकि हम जो AS23 कर रहे हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए कर रहे हैं या खाली कंसोलिडेशन के लिए? खाली कंसोलिडेशन के लिए. एक मिनट, आर यू क्लियर? या चलो अब एक लाइन छोड़ के हेडिंग दो. प्रेजेंटेशन इन consolidated financial statements into bracket as per AS23. As per AS23. 1. Consolidated balance sheet. संभाल के थोड़ा. Consolidated balance sheet.
investment in Y Limited into bracket associate. दो लाइन छोड़ के लिखो, दो लाइन छोड़ के, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, इज इट 5 lakhs? अब ये 5 लाख को दो पार्ट में डिवाइड करने का, अरे बराबर बोलो। पहला पार्ट शेयर इन नेट एसेट्स, सुनो ना, वो छोटों को, दोनों को एक एक मारो, जोर से मार, अरे जोर से मार, ऐसा सोच के मैं तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है, अभी मार। तू गर्लफ्रेंड को ऐसे प्रोटेक्ट करेगा? तेरी गर्लफ्रेंड है कोई? पता चला क्यों नहीं है? हाँ ओके, हाँ अच्छा, शेयर इन नेट एसेट्स। अच्छा अब जरा देखो बैलेंस शीट में हाउ मच इज इक्विटी शेयर कैपिटल? अरे बोलो 10 lakhs। हाउ मच आर रिजर्व्स? 3 lakhs, यानी टोटल नेट एसेट्स हुआ 13 लाख। अरे हाँ, टोटल नेट एसेट्स हुआ 13 lakhs। अच्छा 13 lakhs में कितना परसेंट स्टेक है? 25%। कैलकुलेटर्स 3,25,000। इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर होगा, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी कंसीडर्ड एज गुडविल। कितना? 175। अच्छा अगर ये बैलेंसिंग फिगर नेगेटिव होता तो क्या करके बुलाते? कैपिटल रिजर्व। वेरी नाइस, जस्ट अमेजिंग यू पीपल आर। एक मिनट, आर यू क्लियर? हाँ, इसमें क्या ऐड करने का? शेयर इन पोस्ट पीरियड प्रॉफिट। अब जरा देखो आपके एसोसिएट ने पोस्ट पीरियड में कितना नेट प्रॉफिट कमाया है? 60,000। अच्छा 60,000 का कितना परसेंट? 25%। टेल मी द अमाउंट। 15,000 माइनस डिविडेंड received from associate, 40,000 into 25%, calculators 10,000. So this is called investment at bolo bolo carrying amount. Very nice. बोलो अमाउंट 5,05,000। अच्छा बिफोर आई फॉरगेट, कल का मेरा लेक्चर 1:30 को स्टार्ट होगा, नॉट 1 o'clock, 1:30। मैं आपको एडवांस में बोल देता हूँ, बिकॉज माई लेक्चर समवेयर एल्स गेट्स ओवर एट 12:30। सो यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे को 1:20 जितना हो ही जाता है, तो 1:30 विल स्टार्ट। ओके टुमारो। सो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट डन। ओके चलो ना सेकेंड, consolidated profit and loss statement।
अच्छा, consolidated profit and loss statement में what will come? You tell me. Share in post period profit of associate amount $15,000 ओवर. अरे ओवर, ये है क्वेश्चन नंबर 1. चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Read the question. A Limited acquire 45% of B Limited shares on 1st April 2021. The price paid was rupees 15 lakhs, and following is extract of balance sheet of B Limited on 1st April 2021. Paid up equity share capital, securities premium, reserves and surplus. B Limited has reported net profit rupees 3 lakh and paid dividend of rupees 1 lakh for the year ended 31st March 22. Calculate the amount at which the investment in B Limited should be shown in consolidated balance sheet as on 31st March 2022. अच्छा, एक मिनट, इसने consolidated balance sheet और consolidated profit and loss दोनों पूछा है या खाली balance sheet? खाली balance sheet पूछा है, बराबर, फाइन. चलो, give the heading. What is the question number 2? हाँ, read down heading दो. Presentation of investment in associates in consolidated balance sheet in consolidated balance sheet in context of AS 23 ना भाई. चलो बस, दिस मच वॉज माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सॉल्यूशन. बाकी का पूरा कर दो. यू डोंट रिक्वायर मी एट ऑल. भगवान करे आपको मेरी जरूरत कभी ना पड़े.
हो गया इतना फास्ट? बोलो इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट कितना है? अरे बोलो। अच्छा, शेयर इन नेट एसेट्स 16 लाख का 45% कितना होता? 7,20,000। बैलेंसिंग फिगर 7,80,000। अच्छा, शेयर इन पोस्ट पीरियड प्रॉफिट बोलो। 3 लाख का 45%। यस। अमाउंट 1,35,000। अच्छा, डिविडेंड 1 लाख का 45%। अमाउंट 45,000। फाइनल आंसर 15,90,000। ऐसा सम अगर 4 मार्क के लिए आया या 5 मार्क के लिए आया तो मोस्ट वेलकम ना, आना चाहिए, राइट? आएगा आएगा। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा। चलो टेक अप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, not 4, sorry, question number 3, sorry, question 3, yes please read it everybody. Question number 3, thank you. A Limited acquired 25% of shares in B Limited on 31st March 2021 for rupees 3 lakhs. The balance sheet of B Limited as on 31st March 2021 is given below. Share capital, reserves and surplus, fixed assets, investments, current assets. During the year ended 31st March 2022, the following are additional information available. A Limited received dividend from B Limited for the year ended 31st March 2021 at 40% from the reserves. 2. B Limited made a profit after tax of rupees 7 lakhs for the year ended 31st March 2022. B Limited declared a dividend at the rate of 50% for the year ended 31st March 2022 on 30th April 2022. A Limited is preparing consolidated financial statements in accordance with AS 21 with various subsidiaries. Calculate goodwill if any on acquisition of B Limited shares. 2. How A Limited will reflect the value of investment in consolidated financial statement. 3. How dividend received from B Limited will be shown in consolidated financial statement. So they have asked 3 different questions. बराबर है? Fine. चलो, now let's start with, बोलो, what is the first thing they have asked? Calculation of goodwill in context of AS 23. अच्छा, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, अब ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, खाली कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन तो हम कौन से भी स्टाइल से कर सकते हैं, राइट? क्योंकि ये थोड़ी कोई प्रेजेंटेशन है। हाँ, मुझे बताओ, हाउ मच इज
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अरे जुओ ने भाई, 3 लाख। कहना से 3 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड करने का। पहला शेयर इन नेट एसेट्स एंड बैलेंस। हाँ मुझे बताओ, हाउ मच इज शेयर इन नेट एसेट्स? इज इट 10 लाख? 10 लाख का कितना परसेंट? 25%। कैलकुलेटर्स, 2,50,000। बोलो, हाउ मच इज बैलेंस? 50,000 and this 50,000 is goodwill। थोड़ा समझाया? पूरा पूरा तब था या पोपट? गुड, पोपट। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन consolidated financial statement in context of AS 23। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी का नाम क्या है? बी लिमिटेड, इनटू ब्रैकेट एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। हाँ, हाउ मच इज द कॉस्ट एट विच द इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड? जरा जुओ तो भाई, 3 लाख। कहना है सर ये 3 लाख का 2 टुकड़ा करने का। Share in net assets, share in net assets। बोलो नेट एसेट्स कितना है? 2 लाख। दस लाख का 25% ना? अच्छा अच्छा, तुम लोग ने डायरेक्टली वो बाहर का फिगर बोला, तो घुग्गा ऐसा बोलो ना कि बाहर का फिगर है। आपने सोचा होगा सर को इतना अकल तो होना चाहिए ना। इज इट 50,000? अरे यस। चलो अब इसमें से क्या क्या एडजस्ट करना है मुझे बताओ। अच्छा, हाउ मच इज पोस्ट पीरियड प्रॉफिट? इज इट 7 lakhs प्लस share in
post period profit, ₹7 lakh into, is it 25%? बोल भाई, ₹1,75,000. अच्छा, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ, सबसे इंटरेस्टिंग स्टफ, एडजस्टमेंट नंबर 1 में भी हमें डिविडेंड मिला है और एडजस्टमेंट नंबर 3 में भी हमें डिविडेंड मिला है. अब मुझे बताओ कौन सा वाला डिविडेंड रिकॉर्ड होगा, एडजस्टमेंट 1 वाला या एडजस्टमेंट 3 वाला? वापस एक बार, एडजस्टमेंट 1 वाला और एडजस्टमेंट 3 वाला. 1 वाला, 3 वाला क्यों नहीं? क्योंकि 3 वाला तो डिक्लेयर ही हुआ है 30 अप्रैल 2022 को और हमारा ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2022 वाला. इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ, तो अपने को अक्रू कहां से होगा? AS 9 में हमने सीखा कि डिविडेंड इज रिकॉर्डेड एज इनकम ओनली व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड इन AGM. तो इसका मतलब 30th अप्रैल वाला डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं होगा. कौन सा वाला रिकॉर्ड होगा? फर्स्ट वाला. अच्छा, अब डेटा माइनस डिविडेंड received from B Limited अच्छा, कितना डिविडेंड उन लोग ने डिक्लेयर किया? 40%. अच्छा, 40% किसका कैलकुलेट करने का? शेयर कैपिटल का. तो 5 लाख इंटू 40% इंटू 25%, कितना? इन्वेस्टमेंट एट कैरिंग अमाउंट, बोलो. 4,25,000. इन्वेस्टमेंट एट कैरिंग अमाउंट 4,25,000. अरे यस, okay. Now tell me, what is the third question they have asked? How dividend received from B Limited will be shown in consolidated financial statement? Listen. Write down. Third, ये आंसर थियरी रहेगा. Dividend received from B Limited, dividend received from B Limited during during 2021-22 will be reduced in the balance sheet, from cost of investment to determine carrying amount,
ओवर? अरे यस। चलो अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 आपका सरप्राइज टेस्ट, डू इट। क्वेश्चन 4 आपका सरप्राइज टेस्ट, डू इट। कौन है ये? थोड़ा आराम से करना। मैं तेरे को लास्ट लेक्चर में ही बोला था, हीरोगिरी मत कर।
एक सेकेंड, सच्ची बोलना, मैंने हर बैच में देखा है, ये 15,000 डिडक्ट करने का भूल गए थे ना? कितने लोगों ने किया था 15,000 माइनस? तो अमाउंट 185 ना? क्या अमाउंट किया तूने? कहां से? मगर ये रॉन्ग गया ना? चलो रिपेयरिंग करो। घोगा आ गया वर्षનું ડિવિડન્ડ છે, તો ગયા વર્ષે તો આપણે જરા બી શેર હોલ્ડર હતા જ નહીં એ કંપનીના, આપણે આ વર્ષમાં 1 જુલાઈ લીધું. This is dividend of 2021 and it is received during 21-22. That means this is dividend of last year received in current year, and last year we were not shareholder at all. गड़बड़ किया आप लोगों ने? अरे राम, चलो डन 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 डन. यस सर. चलो व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? presentation of investment in consolidated financial statements as on 31st March 22 in context of AS 23. बोलते जाओ. Investment in East India Limited into bracket associate. एक मिनट, मैं क्यों कर रहा हूं? तुम लोग करो, तुम लोग का टेस्ट है. तुम लोग भी मस्त एंजॉय कर रहे हो, चल पैसा वसूल हो रहा है करके.
अच्छा, यहां पे इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितना है? 2 लाख। दो लाख। हाँ, इसका ब्रेकअप पाइजे। शेयर इन नेट एसेट्स एंड गुडविल। देखो कितना कमीना है एग्जामिनर कि पूरे क्वेश्चन में उसने न इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है एसोसिएट का, न रिजर्व्स दिया है, तो उसको हम ऐसा बोलेंगे क्वेश्चन मार्क। और यहां लिखना है तो लिखो नो डेटा अवेलेबल। ये मॉड्यूल का समय। एक्चुअली एग्जाम ऐसा है तो हम ढूंढते ही रहे कि क्या हिडन एडजस्टमेंट होगा, कहां से ढूंढे, ये करो वो करो, मगर कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है। तो करो क्वेश्चन मार्क किया। प्लस शेयर इन पोस्ट पीरियड प्रॉफिट। अच्छा, अब देखो यहां पे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मिस्टेक करके आते हैं, मोस्ट ऑफ यू। मगर अपना मुंबई इंडियंस ने मस्त सोचा, मगर गलत जगह पे गलत सोचा, मगर बराबर सोचा था कि उनका लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 3 लाख। एग्रीड। मगर वो पूरे 3 लाख में हमारा शेयर नहीं होगा, बिकॉज हमने ये इन्वेस्टमेंट खरीदा है 1 जून 2021 को। डार्क अंडरलाइन करो, 1 जून 2021 को हमने खरीदा है। इसका मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स। तो इनटू 10/12 लेने का। कितने लोग का डेट पे ध्यान गया था? मुंबई इंडियंस का बोलने के बाद गया था या पहले से गया था? पहले से गया था। तुम लोग तो बहुत होशियार हो यार। और उसमें 30%। तुम लोग का सच्ची पहले से ध्यान गया था डेट पे? तुम लोग डेट में होशियार हो। हाँ हाँ, बोलो कितना? 75,000। 75,000 माइनस डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग 21-22। हाँ, कितना डिविडेंड मिला है ड्यूरिंग 21-22? आई थिंक 50,000 ना। 60,000 तो 31 मार्च के बाद डिक्लेयर हुआ है। जो ना गुगाओ, अरे जोयू। सो 50,000 इंटू 30% कितना होता? इन्वेस्टमेंट एट कैरिंग अमाउंट। बोलो
2,60,000. बोलो, what is the third one? ये क्या इडियट है क्या ये पागल साला? What will be the carrying amount as on 30th June 2022 following the statement as per AS 23? 30 जून को उसका बाप कंसोलिडेशन करेगा. कंसोलिडेशन का डेट, कंसोलिडेशन तो ईयर एंडिंग डेट को होता है ना. इडियट 30 जून का पूछ रहा है. 30 जून को थोड़ी कोई कंसोलिडेशन होता है, फिर भी पूछ रहा है. इडियट. हाँ चलो लिखो, ये तो स्टुपिडिटी है. Carrying amount on 30th June 2022. उस दिन को कंसोलिडेशन होता ही नहीं है, तो कैरिंग अमाउंट क्या पूछ रहा है इडियट? इट इज नॉट ईयर एंडिंग डेट. कंसोलिडेशन वी डू इट ऑन द ईयर एंडिंग डेट. हाँ क्या लिखोगे? अच्छा ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं. हाँ रेड डाउन. कैरिंग अमाउंट ऑन 31/3/2022. ये अपने को पता है कितना? 2,60,000. अच्छा खाली 3 महीने हुए ना, तो देखो ना 3 महीने में आपको कोई, ए लड़की शो, माइनस, देखो 3 महीने में कोई डिविडेंड वगैरह मिला है? देखो यार 3 महीने में कोई डिविडेंड मिला है? डिविडेंड रिसीव्ड between 1st April 22 to 30th June 2022. कितना मिला है? 60,000 इंटू कितना परसेंट? 30%. कितना? 18,000. ये क्वेश्चन में पहला 2 पार्ट बराबर था, तीसरा पार्ट एकदम स्टूपिड, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 जून को थोड़ी बनता है. चलो डन डन डन. ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4. हाँ ये भी एक कार्टून जैसा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज. क्वेश्चन नंबर 5, रीड इट. A Limited acquired 40% shares in B Limited on 31st March 2021 for rupees 10 lakhs. On that date, B Limited had rupees 1 lakh equity shares, had 1 lakh equity shares of rupees 10 it fully paid and accumulated profits of rupees 2 lakh. During 21-22, B Limited suffered a loss of rupees 10 lakh. During 22-23, a loss of rupees 12 lakh 50,000, and during 23-24, again a loss of rupees 5 lakh. Show extract of consolidated balance sheet of A Limited on all 4 dates recording the above events. अच्छा एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 को कैंसिल कर दो, क्योंकि ये डिस्कशन हमारे मॉड्यूल में नहीं है. So this is the last question to wind up the standard. Okay.
चलो, everybody read question number 5 once again. Sorry. Question number 5. Read it again, please, everyone. I'm so sorry. God bless you. Yes. Read it. Everybody read the question. Question number 5. उन लोग ने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछा है. कितने साल का? 4 साल का. तो 4 साल का वन आफ्टर अदर करे या 4 कॉलम बनाए? 4 कॉलम बनाएंगे. परफेक्ट. चलो, गिव द हेडिंग. एक्सट्रैक्ट ऑफ consolidated balance sheet in context of बोलो AS 23. कितने कॉलम्स? 4 कॉलम्स. March 2021, 31st March 2022, 31st March 2023, 2024. Investment in B Limited into bracket associate. दो लाइन छोड़ के इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट. 2 लाइन छोड़ने का बराबर ना. पहला पार्ट क्या होगा? शेयर इन नेट एसेट्स. दूसरा पार्ट गुडविल. बोलो, हाउ मच इज इन्वेस्टमेंट? 10 lakhs. अच्छा, शेयर इन नेट एसेट्स. तो बी लिमिटेड का शेयर कैपिटल था 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, यानी 10 लाख. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 2 लाख, यानी टोटल 12 लाख. अच्छा, 12 लाख का कितना परसेंट? 40%. कैलकुलेटर्स. 4,80,000. बोलो. 5-20. और ये ईयर आफ्टर ईयर सेम ही रहेगा.
ईयर आफ्टर ईयर सेम ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे साल ब साल आप प्रॉफिट करते जा रहे हो या लॉस ही करते जा रहे हो? सो माइनस शेयर इन पोस्ट पीरियड लॉस। तो आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट एट कैरिंग अमाउंट, इन्वेस्टमेंट एट, बोलो बोलो, कैरिंग अमाउंट। एक मिनट, व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन? Everybody look at the question, tell me what is the date of acquisition? जुओ भाई, 31st March 2021। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में कोई पोस्ट पीरियड होगा ही नहीं, क्योंकि DOA एंड DOC इज सेम। नहीं समझियो? अच्छा, अब मुझे बताओ 21-22 का लॉस कितना है? बोलो। 10 लाख। 10 लाख का कितना परसेंट? 40%। बोलो, इज इट 4 lakhs? माइनस करो, 6 लाख। अब सबका ध्यान बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे। सेकंड ईयर का लॉस है 12.5 लाख, मगर इन लोग क्या बोलता है? शेयर इन पोस्ट पीरियड लॉस। तो ये पोस्ट पीरियड यानी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का सारा पीरियड पोस्ट होता है। तो इसका मतलब पोस्ट पीरियड में 2 साल आ गए, गया साल प्लस ये साल। इसका मतलब ये होगा 22,50,000 इंटू 40%। अरे आपको समझा? पोस्ट पीरियड 2 साल का हुआ। आप यहां ऐसा नहीं है कि भाई WDV ऑफ दिस ईयर इज बिकमिंग ओपनिंग WDV इन द नेक्स्ट ईयर, नहीं है। देखो हर साल कॉस्ट तो सेम ही है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख, यानी आपको वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरह सोचने का। हाँ बोलो, कितना होता? 9 lakhs। 9 lakhs कितना हुआ? 1 लाख। जो समझ, यहां ध्यान दे। देख ये 10 लाख कॉस्ट है, वो तो हर साल चेंज सेम ही रहा। यानी आज से कितने भी साल पहले तूने इन्वेस्टमेंट खरीदा था 10 लाख, तो वो तो सेम का सेम ही रहेगा। इसका मतलब पोस्ट पीरियड मीन्स जो दिन को इन्वेस्टमेंट खरीदा है उस दिन से लेकर आज तक। 1 साल हुआ तो 1 साल का लॉस, 2 साल हुआ तो 2 साल का लॉस, 3 साल हुआ तो 3 साल का लॉस, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का सारा पीरियड पोस्ट पीरियड है। चलो अब थर्ड। अच्छा, अभी तीसरे साल में वापस लॉस किया 5 लाख का, तो कितना हुआ? 27,50 इंटू 40%, कितना होता है? 11 लाख। अच्छा अब सुनो, जैसे एस 21 में बोला था
कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द मोस्ट जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसी तरह यहां पे उन लोग ने बोला है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एट द मोस्ट जीरो हो सकता है। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ऐसे नेगेटिव लिखोगे तो कैसा खराब लगता है। अरे आर यू गेटिंग इट? सो एट द मोस्ट यू कैन राइट इट एज nil. That means these will be, I am giving you a note on this, restricted to cost. So note 3, $10 lakhs and amount will be 0. अच्छा, आपने ये तीनों नोट लिखा है? नहीं लिखा है तो लिख लो। और तीसरे नोट के ऊपर नीचे लिखो, द इन्वेस्टमेंट्स कैन नेवर बी शोन, द इन्वेस्टमेंट कैन नेवर बी शोन एज नेगेटिव, कैन नेवर बी शोन as negative, full stop. It can be 0 at the most. Zero at the most. Are you clear? Right. तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो नेगेटिव पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टेम्परली आप एडजस्ट करके रख सकते हो। विद दिस AS23 gets over। चलो अब एक ब्रेक ले ले, चलो 4-5 मिनट का एक ब्रेक ले लो और फिर हम AS27 चालू करते हैं। ये AS27 अकाउंटिंग है, यानी अकाउंट्स जैसा ही लगेगा। चलो प्लीज, हाँ, गिव द हेडिंग। एवर टॉकिंग, प्लीज प्लीज गिव द हेडिंग AS27। AS27 financial reporting of interest in joint venture। Financial reporting of interest in joint venture। Financial reporting of interest in joint venture। चलो everyone please pay attention here। सबसे पहले मीनिंग ऑफ द टर्म जॉइंट वेंचर। तो लिसन, जॉइंट वेंचर का बेसिक मतलब होता है टेम्पररी पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर का बेसिक मतलब क्या होता है? टेम्पररी पार्टनरशिप। सो व्हेन 2 or more enterprises
join hands together for some common purpose or for some common interest or exercise, we call it as joint venture. अच्छा, in accounting standard 27 they are talking about three types of joint ventures. पहला है JCO, दूसरा है JCA, तीसरा है JCE. There are three types of varieties we have in exams: JCO, JCA, JCE. अच्छा, JCO is jointly controlled operations. That is JCO. JCA is jointly controlled assets, or JCE is jointly controlled entities. So they are discussing about three forms of joint venture arrangements: JCO, jointly controlled operations; JCA, jointly controlled assets; and JCE, jointly controlled entities. चलो, अब हम लोग एक के बाद एक लाइन में पढ़ना शुरू करते हैं. फर्स्ट है jointly controlled operations, JCO. चलो, अब जरा ध्यान से समझो. मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बराबर क्लियर होगा. समझो, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है ए लिमिटेड. इनका मेन बिजनेस है कंस्ट्रक्शन बिजनेस. सो दे आर इनटू कंस्ट्रक्शंस. एक मीडियम साइज का कंपनी है, छोटे मोटे बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करता है, छोटे मोटे काम करता है, राइट. 10, 12, 20 करोड़ के, 25, 30 करोड़ के काम करता है, छोटे मोटे. ओके, अब समझो, कहीं से उनको कोई पॉलिटिकल झैक लग गया और उनको एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला 6,000 करोड़ का. कितने का? 6,000 करोड़ का उनको ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला. अब ए लिमिटेड को खुद को मालूम है कि ये उनकी औकात के बाहर का काम है. न उनके पास उतना मैन पावर है, न उनका इतना कैपेसिटी है, न उनके पास इतना कैपिटल है. उनके बियॉन्ड कैपेसिटी काम है. मगर धंधा आखिर धंधा होता है, बराबर है. कोई ऐसा काम तो छोड़ेगा नहीं. तो ए लिमिटेड ने क्या किया, उसके कॉम्पिटिटर्स को यानी दुश्मन को उसके साथ मीटिंग किया. दुश्मन के साथ बी लिमिटेड, वो भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है. अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को बोला कि देखो, हम लोग को ऐसा एक 6,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हमारी औकात के बाहर का काम है और आपकी भी औकात के बाहर का काम है. हाँ, मगर अगर हम दोनों मिल के करें तो ये हो सकता है. याद रखना, ये एमालगमेशन नहीं है. दोनों कंपनी ज्वाइन नहीं हो रहा है, खाली हाथ मिला रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए.
यानी ए लिमिटेड के दूसरे जो 10-12 कॉन्ट्रैक्ट है वो वैसे के वैसे चल रहे हैं, बी लिमिटेड दूसरे उनके 10-12 कॉन्ट्रैक्ट है वो वैसे के वैसे चल रहे हैं, वो खाली ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए साथ में आ रहे हैं। तो ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए ए लिमिटेड अपना मटेरियल लगाएगा, बी लिमिटेड भी अपना मटेरियल लगाएगा, ए लिमिटेड अपना लेबर लगाएगा, बी लिमिटेड भी अपना लेबर लगाएगा, बराबर। ए लिमिटेड अपना मशीनरी लगाएगा, बी लिमिटेड अपना मशीनरी लगाएगा। याद रहे, समझो ए लिमिटेड के दूसरे 10 कॉन्ट्रैक्ट है तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज देयर 11th कॉन्ट्रैक्ट, और बी लिमिटेड के समझो दूसरे 12 कॉन्ट्रैक्ट है तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज देयर 13th कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, एमालगमेशन नहीं हो रहा है, खाली दोनों ने हाथ मिलाया किसके लिए? ब्रिज बनाने के लिए। और जैसे ही ये ब्रिज बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा, उन्होंने जो एग्रीड रेशियो डिसाइड किया होगा वो रेशियो में उन लोग एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर कर लेंगे और फिर बोलेंगे तू तेरे घर मैं मेरे घर। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज, देखो नाम ही है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, यानी एक ऐसा स्पेसिफिक ऑपरेशन है जिसके लिए दोनों ने हाथ मिलाया। ऐसा कंस्ट्रक्शंस में भी हो सकता है। आप लोग आए दिन आजकल मूवीज देखते हो तो आप देख सकते हो मूवीज में मोर देन 1 प्रोडक्शन हाउसेज आर इंक्लूडेड नाउअडेज, राइट? तो दे आर ऑल जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, राइट? सो दिस जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस मीन्स दोनों कंपनी मर्ज नहीं हो रहा है। आर यू फॉर्मिंग अ न्यू लीगल एंटिटी? नो, both companies are just joining hands together for a specific contract. याद रखना कि सिंस कोई नया कंपनी फॉर्म नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका कोई अलग बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट खोलने जाओ तो उन लोग सबसे पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट मांगेंगे, और यहाँ पे कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो होगा ही नहीं, ये तो खाली अरेंजमेंट है। इसका मतलब खर्चा भी करना होगा तो ए लिमिटेड अपनी जेब से करेगा, बी लिमिटेड अपनी जेब से करेगा। इसका मतलब ये कोई नया एंटिटी फॉर्म नहीं हुआ है, और अगर नया एंटिटी फॉर्म नहीं हुआ है तो ये नए एंटिटी का कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं होगा, नए एंटिटी का कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं होगा। इसका मतलब transactions will be recorded either in A Limited's books or in B Limited's books or in both the books. तो यहां पे A Limited क्या करेगा? अपनी बुक्स में एक ही अकाउंट खोलेगा कॉल्ड जॉइंट वेंचर विथ B Limited अकाउंट। ऐसा एक अकाउंट ए लिमिटेड अपनी बुक्स में खोलेगा, बी लिमिटेड अपनी बुक्स में एक अकाउंट खोलेगा कॉल्ड जॉइंट वेंचर विथ ए लिमिटेड, राइट? ये दोनों अकाउंट ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की बुक्स में बनेंगे। याद रहे, जॉइंटली कंट्रोल्ड कोई एंटिटी है ही नहीं, यानी कोई पार्टनरशिप फर्म तो फॉर्म ही नहीं हुआ है, यानी उसका कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं होगा। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। आज से हम ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को बोलेंगे वेंचरर्स। क्या बोलेंगे? वेंचरर्स इज नथिंग बट सेकेंड नेम ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स परमानेंट होते, वेंचरर्स टेम्पररी होते। अब यहां पे अकाउंटिंग कैसे होगा? तो जो खर्चा ए लिमिटेड ने किया है वो ए लिमिटेड अपनी बुक्स में लिखेगा, जॉइंट वेंचर विद बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। जो खर्चा बी लिमिटेड ने किया है, आई रिपीट, जो खर्चा बी लिमिटेड ने किया है वो बी लिमिटेड अपनी बुक्स में लिखेगा, जॉइंट वेंचर विद ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अब इनकम जो आएगा
तो वो तो ए लिमिटेड के हाथ में आएगा या बी लिमिटेड के हाथ में आएगा? तो जो भी इनकम ए लिमिटेड के हाथ में आएगा, ए लिमिटेड एंट्री पास करेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद बी लिमिटेड अकाउंट। बी लिमिटेड के हाथ में अगर कोई इनकम आया तो वो बी लिमिटेड लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विद कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद ए लिमिटेड अकाउंट, और ऐसे उनका अकाउंटिंग चलता रहेगा। फाइनली प्रोजेक्ट खत्म होगा, दे विल हैव टू फाइंड आउट जॉइंट वेंचर प्रॉफिट और लॉस, बराबर। अब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों में से एक भी अकाउंट कैपेबल नहीं है, क्योंकि ए लिमिटेड ने खाली वही खर्चे लिखे हैं जो उन्होंने किए हैं, बी लिमिटेड ने खाली वही खर्चे लिखे हैं जो उन्होंने किए हैं। सिमिलरली इनकम भी ए लिमिटेड को जो मिला है वो ए लिमिटेड ने लिखा है, बी लिमिटेड को जो मिला है वो बी लिमिटेड लिखा है, बराबर है। सो दैट इज ओनली दैट मच। सो इसका मतलब जॉइंट वेंचर प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए एक वर्किंग नोट बनेगा। आई रिपीट, जॉइंट वेंचर प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए एक वर्किंग नोट बनेगा, और ये वर्किंग नोट का नाम है ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक सेकेंड, ये ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खास याद रहे, इट इज नाइदर इन ए लिमिटेड्स बुक नॉर इन बी लिमिटेड्स बुक, इट इज जस्ट ऑन अ piece of paper in order to calculate profit या loss। ना ए की बुक्स में है ना बी लिमिटेड की बुक्स में है, खाली एक कागज के टुकड़े पर है to find out joint venture profit या loss। तो यहां पे आप क्या करोगे, सारे ए लिमिटेड के खर्चे लिखोगे, सारे बी लिमिटेड ने जो खर्चे किए वो लिखोगे, इसका मतलब ये टोटल जॉइंट वेंचर एक्सपेंस आ गया। सिमिलरली जो भी इनकम ए को मिला है वो लिखेंगे, जो भी इनकम बी को मिला है वो लिखोगे, इसका मतलब ये टोटल जॉइंट वेंचर इनकम भी आ गया। फिर आप ये टोटलिंग करके बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट ढूंढोगे, बराबर। और जैसे ही प्रॉफिट मिला तो आपको प्रॉफिट में ए लिमिटेड का शेयर मिलेगा, बी लिमिटेड का शेयर मिलेगा, जैसे पार्टनरशिप में मिलता है। उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1:1 या 2:3 या 3:2 या 5:8 जो भी हो सकता है, उनका अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ये हुआ तो ए लिमिटेड अपना शेयर अपनी बुक्स में लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, saying that this is my share in profit। बी लिमिटेड अपना शेयर अपनी बुक्स में लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, saying that this is my share in profit। और जैसे ही ये लिख लिया, इसका मतलब ये कागज का टुकड़ा अब हम फाड़ के फेंक सकते हैं, क्योंकि ये खाली वर्किंग था टू फाइंड आउट जॉइंट वेंचर प्रॉफिट या लॉस। और जैसे ये हो गया तो इसके बाद ये अकाउंट एक दूसरे के साथ क्रॉस टैली होगा, यानी एक अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा तो वही दूसरे में क्रेडिट बैलेंस होगा, और वो बाय कैश बैंक और टू कैश बैंक करके फाइनल सेटलमेंट यानी फाइनल हिसाब, जैसे डिसोल्यूशन में होता है ना फाइनल हिसाब, तो उसी तरह यहाँ पे भी फाइनल हिसाब। और एक बार ये फाइनल रेमिटेंस हो गया म्हणजे हिसाब झालं और दोनों अपने अपने घर। अपने मॉड्यूल में इसके ऊपर खाली एक ही सम है, मगर मैंने एक दो और सम बना के ये बुक में डाले ताकि वो कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर हम लोग जाएंगे मॉड्यूल के सम के ऊपर, बराबर है। मगर उसके पहले हम लोग थोड़ा सा थियोरी लिख लेते, आई मीन
लिखो, चलो पहले आप इतना कॉपी करो। जॉइंट वेंचर का मतलब लिखो, टेम्पररी पार्टनरशिप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स। चलो, हैव यू रिटन? यस सर। अच्छा, लिखा 1 जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखो रिफर नोट्स पेज नंबर 6.36। रिफर नोट्स पेज नंबर 6.36। Please read the question. Read the theory. Read the theory, everybody. Jointly controlled operations JCO. अच्छा, इसमें कुछ प्रिंटिंग एरर्स आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना कि उसने प्रूफ रीडिंग वाला उसके पहले वाला बुक डाल दिया टाइप में, प्रिंट में। हाँ, रीड इट। Jointly controlled operations JCO. When 2 or more companies join together for a specific project or होना चाहिए, or a specific contract, agreeing to share profit and losses either equally or in agreed proportions, it is called jointly controlled operations. Second, since there is no separate entity formed, there cannot be separate books of accounts for joint venture transactions. Full stop होना चाहिए. The transactions will be recorded in the books of venturers. Venturers म्हणजे partners. Each venturer will prepare a separate account in their books in name of joint venture with dash 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 account, यानी कि name of the other venturer, and will record only those transactions which are performed by them. At the end, in order to find out joint venture profit or loss, underline a working, खास ध्यान रहे, a working called draft consolidated profit and loss account is made, wherefrom each venturer will book his share in profit in books by passing following entry. अच्छा, ये एंट्री में ऐसा आना चाहिए, joint venture with dash 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 account debit to profit and loss account. उसने dash 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 नहीं लिखा. And 5, at the end there will be a final remittance or settlement. Take minute. Are you clear? Are yes? Chalo, now take question number 1. ये कोई एग्जाम का सम नहीं है, ये मैंने फ्रेम करके रखा हुआ है ऐसा. क्वेश्चन नंबर 1. चलो, तुसी पढ़ रहे हो? हाँ, पढ़ो. A Limited and B Limited entered into joint venture to construct a building for rupees 600 crores, agreeing to share profit and losses in the ratio 3:2. in the ratio, उसमें M लिखा है. A Limited brought in materials worth rupees 200 crores and incurred rupees 50 crores for purchase of more materials, rupees 20 crores for other expenses. B Limited
brought machinery worth rupees 500 crores for this contract and spent rupees 100 crores for labor and rupees 10 crores for architect fees. A Limited received contract price and took back the unused materials at rupees 40 crore. फिर full stop होना चाहिए. B Limited took back machinery after considering 20% depreciation for its use in this contract. The accounts were settled. Prepare ledger accounts in the books of A Limited and B Limited. हाँ मुझे बताओ A Limited की बुक्स में कितने अकाउंट्स आएंगे? सिर्फ एक. कौन सा? जॉइंट वेंचर विथ बी लिमिटेड अकाउंट. बी लिमिटेड के बुक्स में कितने अकाउंट्स आएंगे? एक. कौन सा? जॉइंट वेंचर विथ ए. अराउंड 8-9 लाइन्स के अकाउंट बनाओ. ड्रॉ द अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स. एक्चुअली ये चैप्टर अकाउंट से ही है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है. बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, joint venture with B Limited account, right hand side corner in crores. Books of B Limited, joint venture with A Limited account, into bracket, in crores. चलो रेडी एवरीबडी? यस सर. क्या बोला है? लेट्स रीड इट एवरीवन. A Limited and B Limited entered into joint venture to construct a building for rupees 600 crores, agreeing to share profit and losses in the ratio 3:2. A Limited brought materials worth rupees 200 crores and incurred rupees 50 crores for more materials and 20 crores for expenses. यहाँ ध्यान दो प्लीज. ये खर्चा किसने किया? A Limited. अच्छा, ए लिमिटेड ने अपने गोडाउन से यानी कि अपने मटेरियल में से 200 करोड़ का मटेरियल दिया, तो आएगा 2 परचेस अकाउंट. क्योंकि जो उन्होंने अपने स्टॉक में से दिया है उसका मतलब उन लोग अपना परचेस कम करेंगे और जॉइंट वेंचर को चार्ज करेंगे. सो 2 परचेस अकाउंट दैट इज मटेरियल्स. और वेट और 2 खर्चा कैश में किया है. क्या किया? अगेन नया मटेरियल्स और मटेरियल्स खरीदे, मगर वो खरीदे यानी वो कैश में आएगा. टू कैश बैंक कितना?
50 करोड़, 50 ना, अदर एक्सपेंसेस 20, कैलकुलेटर्स 70, एक्सलेंट। चलो रेड डाउन दिस मच। सो मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम ओन स्टॉक, तो उसके लिए लिखोगे टू परचेज। अच्छा आगे, बी लिमिटेड ब्रॉट मशीनरी वर्थ रुपीज 500 crores for this contract and spent rupees 100 crores of labor and 10 crores of architect fees। ये खर्चा किसने किया? बी लिमिटेड। टू, मशीनरी, क्योंकि ये कोई अभी नहीं खरीदा है, उन्होंने अपना मशीनरी हैंड ओवर किया है जॉइंट वेंचर को। कितना? 500 करोड़। अरे हाँ या ना? और दो खर्चा कैश में किया है। टू, कैश बैंक। बोलो क्या क्या है? लेबर 100 करोड़, आर्किटेक्ट फीस 10 करोड़, टोटल 110 करोड़। एक मिनट, आर यू क्लियर? आगे, ए लिमिटेड रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अच्छा, ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर हु हैज रिसीव्ड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? ए। सो बाय कैश बैंक। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलो कितने का कॉन्ट्रैक्ट था? 600, 600 crores ना? अच्छा, और क्या बोला है? एंड टुक बैक अनयूज्ड मटीरियल्स एट रुपीज 40 crores। ओ, तो बाय परचेस अकाउंट मटेरियल्स जो वापस लेके गए। 200 करोड़ का मटेरियल लाए थे, उसमें से 40 का उन लोग वापस भी लेके गए। एक मिनट, आर यू क्लियर? अरे यस। बी लिमिटेड टुक बैक मशीनरी आफ्टर कंसिडरिंग 20% depreciation for its use in this contract। ओ, तो क्रेडिट में बाय मशीनरी into bracket taken back amount। तो उन लोग 20% डेप्रिसिएशन कंसीडर करने के बाद लेके गए, यानी 400 करोड़। एंड जॉइंट वेंचर इज ओवर। अब यहां पे आप देख सकते हो दोनों को वेंचरर ने खाली अपना अपना स्टोरी लिखा। उसका मतलब फुल स्टोरी तो किसी के पास है ही नहीं। तो फुल स्टोरी यानी कि पूरा प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, और ये वर्किंग नोट का नाम क्या होगा? वर्किंग नोट का नाम क्या होगा? ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट डाउन, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ joint venture profit। joint venture profit इसके लिए बनेगा
ड्राफ्ट consolidated profit and loss account in crores. एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछूं, ये ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसकी बुक्स में, ए लिमिटेड की बुक्स में या बी लिमिटेड की बुक्स में, या किसी की भी बुक्स में नहीं, किसी भी बुक्स में नहीं, करेक्ट। इसलिए आपने देखा होगा मैंने हेडिंग लिखा है वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, सिंस इट इज वर्किंग, इसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, 2 बाई कुछ नहीं लिखोगे तो चलेगा, आप फ्री स्टाइल में लिख सकते हो, खाली एक्सपेंस का डिटेल्स दिखाना। हाँ, रेड डाउन ए लिमिटेड एक्सपेंसेस। अच्छा, अभी ए लिमिटेड के हाथ कौन से एक्सपेंस हुए, तो मटेरियल्स ब्रॉट, मटेरियल्स बॉट। एक मिनट, ब्रॉट और बॉट का डिफरेंस समझा ना भाई, अदर एक्सपेंस, तुम लोग हो बहुत होशियार। अच्छा बोलो, ब्रॉट कितना है, 200, 200 ना, आप वो अकाउंट में से कॉपी करो सीधा। हाँ, बॉट कितना है, 50, अदर एक्सपेंसेस 20, कैलकुलेटर्स 270। तो ये सारे खर्चे किसने किए, ए लिमिटेड ने। अच्छा, अब लिखो बी लिमिटेड एक्सपेंसेस, यानी जो भी खर्चे बी लिमिटेड ने किए हैं वो सारे धनाधन कॉपी करो। क्या क्या है, मशीन ब्रॉट, बोलो हाउ मच इज मशीन ब्रॉट, 500। हाँ, फिर लेबर 100, फिर आर्किटेक्ट फीस 10, टोटल 610। क्रेडिट साइड ए लिमिटेड इनकम्स। अच्छा मुझे बताओ, ए लिमिटेड के हाथ क्या क्या इनकम आया है, तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आया है, कितना उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आया है, 600, और दूसरा मटेरियल्स टेकन कितना है, 40, इज इट 640? बी लिमिटेड इनकम्स। अच्छा, बी लिमिटेड के हाथ में कौन सा इनकम आया है, खाली वो मशीन टेकन बैक, कितना, 400 ना, ओवर एंड आउट। बोलो प्रॉफिट किया या लॉस, प्रॉफिट 1040 टोटल, 1040 टोटल, डिफरेंस 160। जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, बोलो उनका प्रोपोर्शनेट होल्डिंग 3/5, 2/5, बोलो
96, 64। अच्छा, दोनों अपना अपना शेयर अपनी अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो ए लिखेगा अपना शेयर अपनी बुक्स में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू ब्रैकेट शेयर इन प्रॉफिट। कितना है ए लिमिटेड का शेयर? 96। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर इन प्रॉफिट। बोलो उनका शेयर 64। क्या हुआ? हाँ, पूछने का ही नहीं। 64। अरे यस सर। चलो नाउ क्लोज। थैंक यू। हाँ, चलो अब एक काम करो, क्लोज दिस अकाउंट्स। मुझे बताओ ए लिमिटेड की बुक्स में विच साइड टोटल इज मोर? क्रेडिट इज मोर 640, 640। बोलो डिफरेंस 274। हाँ, अब जरा देखो, ये क्रॉस टैली होता है बी लिमिटेड में। विच साइड टोटल इज मोर? डेबिट अमाउंट 674, 274। परफेक्ट क्रॉस टैली हुआ। अच्छा, तो सुनो, ए लिमिटेड की बुक्स में ऐसे लिखो 2 कैश बैंक अकाउंट, नीचे ब्रैकेट में फाइनल सेटलमेंट। यहां आएगा बाय कैश बैंक इनटू ब्रैकेट फाइनल सेटलमेंट। तो जैसे ये फाइनल सेटलमेंट हो गया, दोनों पार्टनर अपने अपने रास्ते पे। अरे आर यू गेटिंग इट? यानी ये तो दो लोग कॉम्पिटिटर्स मिले, मगर खाली एक प्रोजेक्ट के लिए मिले, बाकी उनका अपना लाइफ एज इट इज चल रहा है। एक मिनट, आर यू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस? या अच्छा, ये एक सम मैंने कराया ताकि इंस्टीट्यूट का सम थोड़ा समझ में आवे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये मॉड्यूल का सम है, स्टूपिड जैसा, मगर ठीक है, मॉड्यूल का सम है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम स्टडी मॉड्यूल। चलो, तुसी पढ़ रहे हो? यस सर। हाँ, रीड इट। मिस्टर ए, मिस्टर बी and Mr. C entered into joint venture to purchase a land, construct and sell flats. A purchased a land for rupees 60 lakhs on 1/1/2021, and for this purpose he took a loan from bank of rupees 50 lakhs, interest at 8% per annum. He also paid registering fees rupees 60,000 on the same day. Mr. B supplied materials for 4,50,000 from his godown, and further he purchased a materials of rupees 5 lakh for joint venture. Mr. C met all other expenses of advertising, labor and other incidental expenses, which turned out to be rupees 9 lakh. On 30th June 2021, each of the venturer agreed to take away one flat each, valued at rupees 10 lakh each flat. Rest of them were sold
as follows: Mr. A 40 lakhs, B rupees 20 lakhs, C rupees 10 lakh. Loan was repaid on the same day by Mr. A along with interest, and net proceeds were shared by partners equally. You are required to prepare draft consolidated profit and loss account and joint venture account in the books of each venturer. चलो भी याद है दो चलो, एवरीबडी पे अटेंशन हियर. कितने वेंचरर है? 3. तो तीनों एक एक अकाउंट बनाएंगे. ए के बुक्स में बनेगा जॉइंट वेंचर विथ बी एंड सी अकाउंट. बी की बुक्स में बनेगा जॉइंट वेंचर विथ ए एंड सी अकाउंट. सी के बुक्स में बनेगा जॉइंट वेंचर विथ ए एंड बी अकाउंट. और तीनों लोग खाली अपने अपने ट्रांजैक्शंस लिखेंगे. और लास्ट में फाइनल हिसाब करने के लिए हम बनाएंगे ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलो ये सम अपने आप ट्राई करो, ये मॉड्यूल का सम है. ए शो तुम लोग तो ये स्टैंडर्ड भूल चुके होंगे ना, महीनों हो गए. अभी याद आ गया. पटेल सर ने
what was the loan amount? 50 lakh. What was the rate of interest? 8%. And this loan money is used for joint venture business for how many months? So into 6 by 12. कितना होता? 2 lakhs. एक second. Before you prepare a draft consolidated profit and loss account, देख लो A account सारी entries correct. Check कर लो please. All entries correct. क्या? मैं नहीं समझा. कितना? पूरा 50 लाख. तो 10 लाख का फ्लैट किधर गया? प्रीमाइसिस की जगह पे एसेट लिखा. बाई सेल्स कैसे लिख सकता है? बाई कैश बैंक ही आएगा ना. सेल्स उसके ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स थोड़ी जाएगा, उसके फाइनल अकाउंट में खाली ये प्रॉफिट का शेयर जाएगा बस. एक सेकेंड, ये बी बराबर चेक करो, सी बराबर चेक करो. अब वर्किंग नोट. Calculation of joint venture profit. Draft consolidated profit and loss account. Draft consolidated profit and loss account is expenses. हाँ क्या है? एक एक्सपेंसेस. लैंड 60 lakhs. Registration fees 60,000. Interest on loan 2 lakhs. ये है 3A के एक्सपेंस. एम आई करेक्ट? कैलकुलेटर्स टोटल. इज इट 60 to 60,000? These expenses material brought. कितना है मटेरियल ब्रॉट? 450. मटेरियल बॉट 5 लाख. 5 ना? नौ 50. These expenses तो आई थिंक एक ही है. अदर एक्सपेंस 9 lakhs. 9 lakhs ना क्रेडिट में. एज इनकम प्रीमाइसिस टेकन 10 लाख. सेल ऑफ फ्लैट्स
40 लाख, दोनों का टोटल 50 लाख। बीज इनकम सेम, सेल ऑफ फ्लैट्स एंड सेल्स कितना, 30 लाख ना। C's income, premises taken, sale of flats 20 लाख। बोलो टोटल 50, 30, 20, 1 करोड़। जॉइंट वेंचर प्रॉफिट ए बी सी, कितना आ रहा है प्रॉफिट, 18,90,000। बोलो 6,30,000, 6,30,000, 6,30,000। अच्छा, सब पार्टनर अपना अपना शेयर अपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट अमंग $6,30,000 to profit and loss account, sharing profit 630 to profit and loss account, sharing profit 630। चलो नाउ क्लोज ऑल अकाउंट्स। टेल मी ए में which side total is more, debit is more ना, 6890, फाइनल सेटलमेंट बाय कैश बैंक। बोलो कितना आ रहा है, 18,90,000। अब मुझे बताओ बी में क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड मोर 30 लाख, बोलो बैलेंसिंग फिगर 14,20,000 to cash bank into bracket final settlement।
बोलो सी में 20 लाख, टू कैश बैंक, फाइनल सेटलमेंट अमाउंट 4,70,000। चेक करो क्या ये क्रॉस टैली हो रहा है? यस, 420 सॉरी 1420 एंड 470 इज 1890। ओके, परफेक्ट क्रॉस टैली। एक मिनट, एवरीबडी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस? चलो, अब सबका खत्म हो गया। शुड आई इरेज इट? चलो, अब हेडिंग दो, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, JCA। जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स JCA। अच्छा, अब जरा याद है एवरीवन, ये जो स्टैंडर्ड है एक्चुअली ये जस्ट अभी लास्ट ईयर ही आया है सिलेबस में। इट वाज नॉट देयर इंटर CS सिलेबस, इट इज न्यूली कम। तो उसी वक्त ये अपने इंडिया में राम मंदिर का वो इनॉर्गरेशन वगैरह हुआ था, तो मैंने उस टाइम पे वो ये एग्जाम्पल फ्रेम किया था, तो वो एग्जाम्पल अभी मेरे सारे बैच में चल रहा है मेरा। अब देखो क्या है एग्जैक्टली जॉइंटली कंट्रोल एसेट्स। अभी यहाँ पे क्या होता है कि 2 or more कंपनीज जॉइंटली कंस्ट्रक्ट सम एसेट या जॉइंटली ओन सम एसेट फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ऑल। फॉर व्हाट? बेनिफिट ऑफ ऑल। देखो मैं आपको एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल में जो मैंने उस वक्त स्टूडेंट्स को समझाया था, एग्जैक्टली आई एम यूजिंग दिस एग्जांपल। याद लिसन, समझो इंडिया में एक एकदम रिमोट एरिया है, यानी किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स तक कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, राइट? ओके, अब वो एरिया में यानी एकदम जैसे वीरान जगह पड़ा है, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स लाइक। अब वो एरिया में वो वहां पे कोई एक छोटा सा रिलीजियस प्लेस था जिसको नॉर्मली कोई विजिट नहीं करता था, राइट? सो आजू बाजू कुछ 4-5-10 घर है, बस उन लोग वहाँ पूजा करते हैं वगैरह, वो सब, राइट? कोई भी रिलीजन का हो सकता है, रिलीजियस प्लेस था। अब इंडिया में तो मालूम है ना, वो अपने रिलीजियस मैटर में तो जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार, ऐसा है अपना, राइट? हाँ, तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई चमत्कार वाला बात हो गया, तो सडनली ये रिलीजियस प्लेस का पॉपुलैरिटी बढ़ गया एकदम। अपने यहाँ तो चमत्कार वहाँ नमस्कार, यानी कुछ हुआ तो सडनली वो रिलीजियस प्लेस एकदम फेमस हो जाता है, राइट? और यहाँ पे जैसे ही वो हुआ तो उसका न्यूज़ फैलने लगा, और जैसे न्यूज़ फैलने लगा तो जाहिर है अब वहाँ पे विजिटर्स आना चालू करके, राइट? बिकॉज द बिगेस्ट थिंग इज इट रिलीजियन कि भाई पीपल विल डू, राइट? और यहाँ not only from India but from different places visitors have started visiting। मगर यहाँ पे एक टेक्निकली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो ये कि सिंस दिस इज टोटली अनपॉपुलेटेड एरिया, तो यहाँ कोई नियर बाय एयरपोर्ट है ही नहीं। ये रिलीजियस प्लेस के नियरेस्ट एयरपोर्ट है
एक दूर कोई सिटी में, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर्स अवे। कितना? ये मंदिर से 600 किलोमीटर अवे कोई एयरपोर्ट है। यानी जो भी रिच पीपल आर कमिंग बाय फ्लाइट्स, तो उन लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से एज वेल एज आउटसाइड से ये एयरपोर्ट पे आते हैं, और यहाँ से 600 किलोमीटर का ड्राइव। अच्छा, 600 किलोमीटर का ड्राइव यानी इंडियन रोड्स के हिसाब से 600 किलोमीटर का ड्राइव शुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स, क्योंकि आप कंटिन्यूस तो चलोगे नहीं, आप बीच में 2-3 ब्रेक भी लोगे, राइट? सो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स का ड्राइविंग डिस्टेंस। ओके प्लीज। अब ये बहुत ही इनकन्वीनियंट हो रहा है, और जैसे ये लोग यहाँ आते जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि यहाँ ये एरिया अभी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करेगा। होटल्स बनेंगे, लोग ज़्यादा रहना शुरू करेंगे, बिजनेसेस खुलेंगे, और ये एरिया धीरे 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 पॉपुलर बनता जाएगा। बराबर है? तो अब ये जो टेम्पल के ट्रस्टीज हैं, उन लोग ये विजिटर्स से कंप्लेंट सुनते हैं कि यार बहुत ट्रैवलिंग प्रॉब्लम हो रहा है ये वगैरह। तो ये टेम्पल अथॉरिटीज़ ने क्या किया कि उन्होंने गवर्नमेंट को जाके रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट को जाके, कि हम आपको बहुत बड़ा लैंड देते हैं, प्लीज़ आप यहाँ एक एयरपोर्ट बना के दो। बट इंडियन गवर्नमेंट, राइट, विच इज़ मेनली रिलीजियसली डोमिनेटेड, इसका मतलब अगर हिंदू टेम्पल है तो दूसरे रिलीजन वाले बोलेंगे कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, मुस्लिम टेम्पल है तो दूसरे रिलीजन वाले बोलेंगे ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्रिश्चियन प्लेस है तो दूसरे रिलीजन वाले बोलेंगे ये वेस्ट ऑफ मनी है। दिस इज इंडिया एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो यहाँ पे सो सारे रीजन की वजह से गवर्नमेंट इज नॉट इन पोजिशन टू टेक एनी एक्शन। तो ये रिलीजियस टेम्पल वालों ने क्या किया कि उन लोग ने डायरेक्ट एयरलाइन कंपनीज को कांटेक्ट किया कि तुम लोग तो सब लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो, एक काम करो ना, सब लोग मिलकर यहाँ एक एयरपोर्ट बनाओ ना। अब एक कंपनी कैपेबल नहीं है कि इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करे। सी लैंड फ्री आ रहा है, मगर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने सारे अदर एक्सपेंसेस लगते हैं, राइट? तो एक कंपनी का काम नहीं है। तो अलग अलग एयरलाइन कंपनीज में से 4 कंपनी तैयार हुए, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड। ये चारों एयरलाइन कंपनीज है। उन्होंने चारों ने मिलकर एयरपोर्ट बनाया। एयरपोर्ट का कॉस्ट आया 8,000 करोड़ का। तो 2,000 करोड़ ए लिमिटेड ने लगाए, 2,000 करोड़ बी लिमिटेड ने लगाए, 2,000 करोड़ सी लिमिटेड में लगाए, और 2,000 करोड़ डी लिमिटेड ने लगाए, और एयरपोर्ट बन गया। अब टेल मी, हु इज द ओनर ऑफ एयरपोर्ट? 4 डिफरेंट कंपनीज। तो इसका मतलब ये एयरपोर्ट कौन सी कंपनी की प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा? तो चारों कंपनी में आएगा। 2,000 करोड़, 2,000 करोड़, 2,000 करोड़, 2,000 करोड़, और उन लोग उसमें लिखेंगे क्या? शेयर इन जेसीए। क्या क्या क्या? इन जेसी। दैट मैन इन ब्लैक। तो बंद करना, मोबाइल बंद करना यार। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तो बंद करना यार, छोड़ना दुनियादारी यार। नाउ लिसन, सो व्हाट हैपेंस कि ये एयरपोर्ट चारों कंपनी की एसेट बैलेंस शीट में आएगा, पीपीई में, एज शेयर इन जेसीए, और उसके ऊपर बकायदा उन लोग डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, और वो डेप्रिसिएशन अपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेंगे। अब एयरपोर्ट तो बन गया, मगर याद रहे खाली एयरपोर्ट बनाना तो इनफ नहीं होता है, वो चलाना भी होता है। अब यू नो एयरपोर्ट चलाने के लिए कितने खर्चे होते हैं? बराबर है? सबसे बड़ा खर्चा मेंटेनेंस, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा स्टाफ, राइट? सो हेवी ह्यूज एक्सपेंस। अच्छा, ये ह्यूज एक्सपेंस कौन करेगा? चारों मिलकर करेंगे।
समझो साल का एयरपोर्ट रनिंग एक्सपेंसेस आया है 800 करोड़, तो चारों कंपनी 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ डालेंगे और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर एक्सपेंस में एक्सपेंस करके लिखेंगे शेयर इन JCA एक्सपेंसेस. what शेयर इन JCA एक्सपेंसेस. अब याद रहे ये एयरपोर्ट चलाने के लिए आपने 800 करोड़ का खर्चा किया, मगर ये एयरपोर्ट आपको इनकम भी तो कमा के देगा. समझो एयरपोर्ट ने आपको 1500 करोड़ का इनकम कमा के दिया. अब एयरपोर्ट में तो कितना सारा इनकम होता है. सबसे ह्यूज इनकम पार्किंग चार्जेस, राइट. एयरक्राफ्ट के जो पार्किंग चार्जेस है वो पर मिनट के हिसाब से उन लोग चार्ज करते हैं. आई रिपीट, पर मिनट के हिसाब से. यानी कोई भी एयरलाइन कंपनी का अगर फ्लाइट डिले होता है तो दैट कॉस्ट देम ह्यूजली. सो इसलिए जो इफेक्टिव एयरलाइन कंपनी है दे ट्राई टू कीप देयर फ्लाइट्स ऑन टाइम. रीजन, क्योंकि पर मिनट के हिसाब से दे हैव टू पे पार्किंग चार्जेस. दूसरा, एयरपोर्ट में कितने सारे लॉन्जेस, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, प्लस शॉप्स है, तो सबसे उनको रेंट मिलता है. नाउ एयरपोर्ट में यू मस्ट हैव सीन सो मेनी एडवर्टाइजेज आर देयर, राइट. वो एडवर्टाइजमेंट का भी रेवेन्यू आता है. आपका जो बोर्डिंग पास है, आप देख सकते हो बोर्डिंग पास के पीछे कभी कभी कोई स्पॉन्सर कंपनी का नाम होता है, तो उसका भी उनको इनकम आता है. फिर एयरपोर्ट के बाहर जो कार पार्किंग है, एनॉर्मस चार्जेस दे चार्ज, तो उनका भी ये ह्यूज इनकम है. सो इनफैक्ट यू मस्ट बी नोइंग दैट कि अदानी एयरपोर्ट्स करके पूरा एक लिमिटेड कंपनी है जिसका काम ही एयरपोर्ट चलाना. दैट मीन्स देयर हैज टू बी सम प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ना, तभी तो उन लोग चला रही है कंपनी. तो एयरपोर्ट से उनको साल का 1500 करोड़ का इनकम आता है. तो ये 1500 करोड़ का इनकम कौन लेगा? चारों कंपनी बांट के खाएंगे. अरे बराबर. तो चारों कंपनी की अदर इनकम्स में आएगा इनकम फ्रॉम JCA, इनकम फ्रॉम JCA, इनकम फ्रॉम JCA. सबकी बैलेंस शीट में, सबके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएगा. अरे आर यू गेटिंग इट? और ये चलता रहेगा. अच्छा, दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि उनका यहाँ पे राइट्स 1:1:1:1 समझो ओनरशिप है, तो जरूरी नहीं है कि उनका एक्सपेंस बेरिंग भी 1:1:1:1 हो. जरूरी ये भी नहीं है कि उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी 1:1:1 हो. सबका अलग अलग भी हो सकता है. क्योंकि फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड का ये एयरपोर्ट पे दिन में खाली 3 फ्लाइट आता है, मगर बी लिमिटेड का ये एयरपोर्ट में दिन में 8 फ्लाइट आता है, तो इसका मतलब खर्चा बी लिमिटेड ज्यादा बेर करेगा. अरे आर यू गेटिंग इट? यानी जरूरी नहीं है कि जो रेशियो में उनका ओनरशिप हो वही रेशियो में उनका इनकम एंड एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, वो भी अलग हो सकता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ JCA, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स. एकदम क्लियर? एवरीवन फाइन. एक काम करो, आपने JCA करके हेडिंग लिखा है, उधर लिखो रिफर नोट्स पेज नंबर 6.36. आई थिंक एग्जाम्पल से परफेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट? जॉइंटली कंट्रोल एसेट्स, पॉइंट नंबर 6, पेज नंबर 6.36. रीड इट प्लीज एवरीबडी. Under this form of joint venture, first point, when 2 or more companies join together to own and maintain assets for economic benefits of all is called jointly controlled assets. Jointly owned assets will appear in individual balance sheets of the venturers under the head
property, plant and equipments as share in JCA on which even depreciation will be charged. 3. The revenue from jointly owned assets and even expenses of jointly owned assets will appear in profit and loss statement of individual venturers as share in JCA incomes or expenses. एक मिनट, आर यू क्लियर? अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने एक सम खुद फ्रेम करके रखा है कि ये सम समझेंगे तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4, please read it. A Limited, B Limited and C Limited jointly constructed an airport. Total cost 10,000 crores. The ownership was to be in the ratio 5:3:2. They further decided to share incomes in the ratio 3:2:1 and expenses in the ratio 2:2:1. Oh, other expenses, other data: rate of depreciation 5%, revenue generated from airport 600 crores, airport maintenance cost 250 crores. Please show extract of financial statement of each co-venturer. अच्छा सुनो, यहाँ पे उन लोग आपको कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पूछ ही नहीं सकते, एक्स्ट्रा ही पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा या खाली स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कि उनका जो जेसीए रिलेटेड आइटम है वो पूछ सकते हैं खाली, यानी हमेशा एक्सट्रैक्ट ही आ सकता है. आर यू गेटिंग इट? फाइन. चलो लेट्स स्टार्ट. कितने को वेंचरर्स है? 3. गिव द हेडिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रुपीज इन क्रोर्स. Extract of financial statements into bracket rupees in crores. A Limited, B Limited, C Limited. A Limited, B Limited, C Limited. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब खाली बैलेंस शीट या बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. तो पहला बैलेंस शीट. अच्छा मुझे बताओ, बैलेंस शीट का कौन सा हेड आएगा रिलेवेंट हेड? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स. उसमें आप क्या लिखोगे? शेयर इन JCA. अच्छा, 10,000 करोड़ का एयरपोर्ट बनाया. अरे बराबर, रेशियो है 5:3:2. बोलो, 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, 2,000 करोड़ माइनस
डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर बकायदा डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर सकते हो आप। बोलो व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 5%। बोलो 5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना होगा? 250, 150, 100। Tell me value after depreciation. 4750, 2850, 1900। बस, तो बैलेंस शीट का एक ही हेड था। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अच्छा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के कौन से हेड्स अफेक्टेड है? तुम बोलो प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से हेड्स अफेक्टेड होंगे? तो एक अदर इनकम्स, एक क्या होगा? अदर इनकम्स। अच्छा, अदर इनकम्स में क्या आएगा? शेयर इन जेसीए इनकम। हाँ, मुझे बताओ जेसीए का कौन सा इनकम है? तो रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एयरपोर्ट है 600 करोड़। अच्छा, उन लोग ने रेवेन्यू कौन से रेशियो में शेयर करने का तय किया है? 3:2:1। बोलो 300 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़। सबके नीचे ऐसे डबल लाइन ड्रॉ करते जाना ताकि आपको पता चले कुछ टोटलिंग वोटलिंग नहीं करने का, ये खाली एक्सट्रैक्ट है। यू डोंट हैव टू टेक आउट एनी रिजल्ट्स, क्योंकि ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है या खाली फोकस्ड एरिया? फोकस्ड एरिया है। दूसरा कौन सा हेड अफेक्टेड है? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन ऑन जेसीए। आई थिंक आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, कॉपी मारो। कितना था? 250, 150, 100। फिर वो डबल लाइन। आई थिंक एक और है, अदर एक्सपेंसेस। बोलो अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा? शेयर इन जेसीए मेंटेनेंस कॉस्ट। कितना था जेसीए का मेंटेनेंस कॉस्ट? 250 करोड़। अच्छा, उसके बारे में उन्होंने क्या रेशियो डिसाइड किया था, जरा जुओ तो। 2:2:1। बोलो 100 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़। अरे ओवर। चलो, आज मैं आपको एक सम होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, इंस्टीट्यूट सम होमवर्क। प्रॉमिस मी एवरीबडी विल ट्राई एंड कम। कल मेरा पहला काम होगा ये सम का सॉल्यूशन, और फिर हम चलेंगे आगे। पक्का एवरीबडी विल ट्राई ना? चलो, मगर कल याद रहे, नॉट 1 o'clock, 1:30।